أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے فہم قرآن کے سلسلہ میں عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نے رکوع نمبر 14 کی تلاوت کا اعزاز حاصل کرنا ہے۔ آج کے سبق میں تجوید کا سبق لحن کا بیان ہے۔ لحن کس کو کہتے ہیں اور اس کی اقسام کیا ہیں، اس کی مثالیں کیا ہیں اور اس کا حکم کیا ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ لحن کا معنی لب و لہجہ ہے، اس کا لفظی مطلب ہے لب و لہجہ، مگر تجوید میں اس سے مراد غلطی ہے۔ تجوید میں دو اقسام کی لحن کی جاتی ہیں، لحن جلی بڑی اور نمایاں غلطی، لحن خفی چھوٹی غلطی۔ تو غلطی ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، ہمیں نہ چھوٹی کرنی چاہیے نہ بڑی کرنی چاہیے۔ ہاں، صورتحال یہ ہے کہ لحن دو اقسام پر ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی کا ارتقاب، اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے، اس کی مثال دیکھیے۔ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، مثلا قلب کو کلب پڑھ دینا۔ قاف موٹا تھا، آپ نے اس قاف کو کاف کر کے پڑھ دیا، بریک پڑھ دیا، جو جس میں صفت استعلاء تھی، جس کو مفخم پڑھنا تھا اس کو مرکک پڑھ دیا، بریک کر دیا، یہ حرف سے حرف بدل گیا۔ اسی طرح قل هو اللہ احد میں قاف موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا، صفت استعلاء کے ساتھ پڑھا جائے گا، مگر اگر کوئی قل هو اللہ احد کاف کتاب والے کاف کے ساتھ پڑھ دیتا ہے تو یہ حرف کو حرف سے بدلا جا رہا ہے۔ ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دینا، مثلا انعمتا کی بجائے کوئی شخص انعمتو پڑھ دیتا ہے، تو یہ آپ یہاں اس غلطی کو سمجھ رہے ہوں گے، کیونکہ پہلے میں ابھی ہم نے مخارج نہیں پڑھے تھے، شاید اس لیے کسی کو اس لیول کی سمجھ نہ آئی ہو جو میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مگر یہ دوسرے نمبر والی کی دیکھیے، آپ نے فعل ماضی کی گردان پڑھی، انعما، انعما، انعمو، انعمت، انعمتا، انعمنا، انعمتا، صیغہ واحد مذکر حاضر، مانا ہے تو نے انعام کیا۔ اب اس کی بجائے کوئی شخص 13واں صیغہ پڑھ دیتا ہے، انعمتا، انعمتما، انعمتم، انعمتی، انعمتما، انعمتنا، انعمتو، انعمنا، وہ یہاں انعمتو پڑھ دیتا ہے اس انعمتا کی بجائے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ پورے 3 صیغوں کا اپنا 5 صیغوں کا بیچ میں سے وقفہ آ رہا ہے۔ تا کا مطلب ہے تو نے انعام کیا، انعمتو کا مطلب ہے میں نے انعام کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرکت کی تبدیلی یا حرف کی تبدیلی سے معنی بدل جاتا ہے، اور اس معنی کی تبدیلی کی وجہ سے اس کو لحن کہا جاتا ہے، غلطی کہا جاتا ہے۔ کسی حرف کو بڑھا کر پڑھنا، جیسے لم یلد کو
अक्सर देहाती लोग पढ़ते हैं लम यालिद वलम युलद को भी वो यूलद को युलद कह देते हैं, यानी जहां मद करना थी वहां नहीं करते और जहां मद नहीं करना थी वहां कर देते हैं। तो आपको पता है मद या हरूफ मद्दा जो हैं ये एक अलिफ के कई मकाम होते हैं। सो हर्फ या कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। लम यलिद ये असल है, अब इसको यालिद करके पढ़ेंगे तो अलिफ साथ पढ़ा जा रहा होगा। लम यालिद, तो एक हर्फ का हमने अपनी तरफ से इजाफा कर दिया, जबकि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है जिसमें हम किसी हर्फ को अपनी तरफ से इजाफा नहीं कर सकते, किसी हर्फ का हम अपनी तरफ से उसमें कमी नहीं कर सकते, किसी हरकत को बदल नहीं सकते। ये अल्लाह का कलाम है, इसको मिन्नो अन पढ़ा जाएगा। किसी लफ्ज में कोई हर्फ कम कर देना, जैसे वलम यूलद को वलम युलद कह दिया, यानी यू को लंबा करना था, वाव साकिन माकबल मजमूम वाव मद्दा थी, लेकिन मद्दा नहीं किया, जल्दी से पढ़ दिया वलम युलद, तो माना बदल गया और एक हर्फ इससे कम हो गया। लहने जली का हुक्म क्या है? लहने जली का इर्तिकाब बाहवाला तजवीद हराम है और इसका इर्तिकाब करने वाला गुनाहगार है। इसलिए तर्जमा आए ना आए, लफ्ज को दुरुस्त पढ़ने पर ज्यादा फोकस किया जाता है। कम अज कम लफ्ज पढ़ना आ जाए, और मैं तो ये कहता हूँ कि जिसको पढ़ना आता है फिर उसको तर्जमा करना आता है, जिसको पढ़ना भी ना आए उसको तर्जमा करना नहीं आता। तर्जमा तभी आता है जब हम दुरुस्त पढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो हिस्सा कवायद का सबक है, इससे पहले हम हुरूफे नवासिब पढ़ चुके थे। अन, लन, कई, इज़न ये फेल मुजारे पर दाखिल होते थे और कुछ तब्दीलियां रूनुमा कर देते थे। तब्दीलियां क्या थी कि जम्मा वाले सीगों के ऊपर जो 4 सीगे थे वहां आखिर पर हरूफे नवासिब नसब यानी जबर दे देते थे, आखिर से हर्फ इल्लत को गिरा देते थे और 7 जगहों से नून इराबी गिरा देते थे, 2 जगह पर नून जमीरी कायम रहता था। ये 4 अमल जो हुरूफे नवासिब करते थे वही 4 काम हुरूफे जवाज़िम करते हैं। फर्क ये है कि नवासिब नसब देते थे, जबर आती थी, और जवाजिम जज़म देते हैं, सकून देते हैं, जज़म आखिर पर आ जाती। हुरूफे जवाजिम 4 है, लम, लम्मा, लामे अम्र और लाए नहीं। लम, लम्मा, लामे अम्र, लाए नहीं। लम, लम्मा, लामे अम्र, लाए नहीं। ये 4 हर्फ ऐसे हैं जो फेल मुजारे पर दाखिल होते हैं और 4 किस्म की तब्दीलियां पैदा करते हैं फेल मुजारे में। जम्मा वाले सीगों के आखिर में जज्म आ जाएगी, जैसे यफ आलू से लम यफ अल। अब मैं पूरी गर्दान पढ़ के सुनाता हूं, पहले ये देख लीजिए। अगर आखिर पर हर्फ इल्लत आ जाए, हर्फ इल्लत क्या है? वाओ अलिफ या, वायुन इसका मजमुआ है, वाओ अलिफ या ये हर्फ इल्लत है। जब फिल मुजारे में ये लास्ट पर आ जाएगा तो गिर जाएगा, जैसे तदउ से ला तदउ, अब वाव है ये गिर जाएगा और सिर्फ एन को पढ़ा जाएगा। जिन सीगों के आखिर में नून इराबी आता है, नून इराबी 7 जगहों पर आता है, तो उसको गिर जाएगा, हज़फ हो जाएगा जब हुरूफे जवाज़िम आ जाएंगे। जैसे तक्तुलूना से लम तक्तुलू, नून जमीरी अपनी जगह कायम रहता है, हज़फ नहीं होता। जो जमा मुअन्नस हाजिर और जमा मुअन्नस गायब 6वां और 9वां सीगा है वो उसी तरह बरकरार रहेंगे, जैसे ला तफ़अलना। अब गर्दान देखिए, पहले मैं मुजारे की पढ़ रहा हूँ, फिर हुरूफे जवाज़िम लगाकर पढ़ूंगा, आप इसमें फर्क को ढूंढिए। यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना,
तफ़अलू तफ़अलानी तफ़अलूना तफ़अलीना तफ़अलाने तफ़अलना अफ़अलू नफ़अलू। अब फिर मुजारे पर लम लगा के देखते हैं जो जज्म देता है। लम यफ़अल, ये देखिए यफ़अलू था, अब लम की वजह से यफ़अल हो गया। लम यफ़अल लम यफ़अला, ये असल में था यफ़अलानी, तो लम की वजह से नून एराबी गिर गया। लम यफ़अलू असल में था यफ़अलूना, तो नून जो है वो एराबी गिर गया। लम यफ़अलू लम तफ़अल, ये असल में था तफ़अलू, लम के ऊपर पेश थी तो लम की वजह से यहाँ सुकून आ गया। लम तफ़अल लम तफ़अला लम यफ़अलना, अब यहाँ नून बरकरार रहा। लम तफ़अल लम तफ़अला लम तफ़अली लम तफ़अल लम तफ़अला लम तफ़अलू लम तफ़अली लम तफ़अला लम तफ़अलना लम अफ़अल लम नफ़अल। ये इस तरह आप जो गर्दाने फिल मुजारे की पढ़ी हैं उनमें से एक आध, अगर आप तकलीफ महसूस ना करें, वक्त इजाज़त दे, तो आप इसको ज़रूर लिख कर देखिएगा। कुछ चीज़ें लिखने से ताल्लुक़ रखती हैं, और बेटे लिखने से गुरेज ना किया करें। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स हुसूल इल्म, तालीम व तरबियत के हवाले से जब वो लिखता है तो जिस पेन की स्याही से लिखता है उस कलम की स्याही कयामत के रोज शुहदा के लहू के बराबर तोली जाएगी। तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते हो कि अल्लाह ताला ने इल्म के हुसूल के लिए उस मुताल्लिम की कितनी फजीलत बताई। जो तालिब इल्म हुसूल इल्म के लिए अपने घर की चौखट से बाहर कदम रखता है, इधर उसकी चौखट से बाहर कदम हवा में लहरा रहा होता है, उधर आसमान पर मलाइक आपस में झगड़ रहे होते हैं कि इसके पांव के नीचे हमने अपने नूरानी परों को बिछाना है। और आपको तो अल्लाह ने अपने घर की दहलीज पर हुसूल इल्म की मजलिस अता की है। आप अपने शौक को बरकरार रखिए और अपने ज़ौक़ से अपने इर्द गिर्द अहबाब को इस कोर्स में शामिल करवाइए। कुरान मजीद की तफहीम का एहतमाम अगर आपको आपके घर की दहलीज पर मुयस्सर आ रहा है, इससे बड़ी कोई सादत मंदी नहीं है। इस वक्त कौम जो है वो तमाम तर बहसीयत कौम हम देखिए और इंटरनेशनल लेवल पे जाके देखिए तो हर शख्स मसाइब में घिरा हुआ है। कुरान कैटेगोरिकली कह रहा है कि जब तुम मेरे जिक्र से एराज करते हो तो फिर फ़इन्न लहू मईशतन दनका, फिर हम तुम्हारी जिंदगी की गुजरान को तंग कर देते हैं। ये दरअसल हमारी जिंदगियों के मसाइल, हमारे बदआमालियों के नताइज हैं। बहसीयत कौम हूँ या वो इनफरादी हूँ, सो हर शख्स को ज़रूरत है अल्लाह रब्बुल जलाल के हुजूर रुजू करने की, ताकि अल्लाह ताला इन मसाइब और इन आलाम से हमें निजात अता फरमाए। मिसालें देखिए, लम की मिसाल, लम नहीं, ये उमूमन नफी का माना देता है, और जब लम फिल मुजारे पर आता है तो मुजारे को माजी मनफी का माना दे देता है। लम यलिद, नहीं पैदा किया उसको, वलम यूलद, और ना वो पैदा किया गया है। यानी अल्लाह ताला ना किसी की औलाद है और ना ही उस अल्लाह ताला खुद किसी की औलाद नहीं और कोई शख्स उसकी औलाद नहीं है। यानी अल्लाह ये सिस्टम औलाद से किसी की औलाद होना या कोई उसकी औलाद होना, ये दोनों उमूर से अल्लाह की जात पाक मुनज़्ज़ह है। लम्मा, ये भी फेल माजी का माना और मनफी का माना देता है, मगर इसमें गुज़श्ता मुकम्मल ज़माना तादमे गुफ्तगू शामिल होता है।
मसलन वलम्मा यअलमिल्लाह, और अल्लाह ने अभी तक आपकी परख नहीं की। अब ये आयत जहां पर आएगी, शायद मुझे, चूंकि मैं हाफिज नहीं हूँ, मुझे याद भूल जाती है, नालायक सा आदमी हूँ, तो इस आयत का तर्जमा अक्सर मुतर्जमीन ने बड़ा अजीब सा किया है। उन्होंने ये कहा है कि अभी तक अल्लाह ने नहीं जाना कि तुम में से कौन से लोग हैं जो जिहाद करते हैं। तो अल्लाह ताला से की तरफ ना जानने की निस्बत जाहिलियत की निस्बत होती है। जाहिलपन होता है जब हम कह रहे होते हैं कि फलाने को पता नहीं है, तो अदम इल्म जाहिलियत की अलामत है। सो जहूल को अल्लाह की जानिब निस्बत करने से अल्लाह ताला की बेहुरमती है। सो यहाँ माना ये होगा कि अभी तक, यानी तादमे गुफ्तगू, जब गुफ्तगू हो रही है उस लम्हे तक ये हुक्म है कि वलम्मा या अल्लाह, अल्लाह ने अभी तक आजमाया नहीं है अल्लाजीना, उन लोगों को, जाहदू, जो तुम में से जिहाद करते हैं, उन साहिबाने मुजाहिदीन को अभी अल्लाह ने उतने मसाइब, उतने आलाम, उतनी तकालीफ में से गुजार कर आजमाया नहीं है। अल्लाह तो अपने इल्म कदीमी से जानता है कि कौन शख्स राहे खुदा में जिहाद करने को पसंद फरमाता है और कौन, किसके नफूस जो हैं वो तिबई तौर पर जिहाद को पसंद नहीं करते। इसमें मुजाहिदीन की जो है वो ऐसा नहीं कह सकते कि मुजाहिदीन के जिहाद ना करने की वजह से अल्लाह उनको तंबीह कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो इंसान चूंकि फितरतन अमन पसंद है, उस फितरी सलाहियत को मद्देनजर रखकर ये हुक्म दिया जा रहा है कि अभी तक तो अल्लाह ताला ने आपको लड़ाई के मैदान में आजमाया नहीं है। ये अभी तक अल्लाह ने जाना नहीं, तो इस तरह के मानी करने से अल्लाह ताला की हुजूर जो है वो गुस्ताखाना इर्तिकाब होने का खदशा है। सो ऐसे अल्फाज अल्लाह की जानिब निस्बत नहीं करेंगे। ये जो लाम अम्र है, ये चाहिए का माना देती है। फेल मुजारे पर अमर का माना पैदा हो जाता है, जैसे फल यंजुरिल इंसानु, बस चाहिए कि नजर करे इंसान, इला तामिही, अपने खाने की तरफ। और फिर एक और मुकाम पर है बल यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल, और चाहिए कि लिख ले तुम्हारे दरमियान एक कातिब अदल के साथ, जो डिसीजन हुआ है तुम्हारे उस कर्जा लेने के मामले में। और ये फल यंजुरिल इंसानु इला तामी, ये आयत का हिस्सा जो है ये असहाबे काफ की जानिब और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम उनकी बाबत ये इस तरह के अल्फाज आए। आगे कुरान मजीद में हम इसकी डिटेल देख लेंगे, यहाँ टाइम इंतहाई कम है। लाए नफी, इससे फेल मुजारे में किसी काम से रोकने का मफहूम पैदा होता है, जिसकी मिसाल देखिए, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के शरीक न ठहराओ, किसी को अल्लाह का शरीक ना ठहराओ। असल में था तुशरिकू, तुशरिकू को लाम अलिफ ला की वजह से यहाँ काफ के ऊपर जो जम्मा था वो खत्म हो गया, और यहाँ जज्म इस लाए नफी की वजह से यहाँ जज्म आ गई। अब वो कहते हैं हरूफ शर्त मज़कूरा, हमने ये कहा था ना, लम्मा लम्मा लाम अम्र लाए नहीं, और इन शर्तिया भी है, इसमें क्या है, इन शर्तिया। अब इनके साथ कुछ उसकी कैटेगरी के और चीजें भी हैं, हरूफ शर्त और भी हैं, और वो चार हैं, इन, मा, मन, ऐनमा। इन अक्सर औकात शर्त के लिए आता है, मा, मन और ऐनमा ये कभी कभी शर्त का माना देते हैं, कभी कभी और माना देते हैं, जो सयाक़ व सबाक़ के हवाले से देखा जाता है। आइए चलते हैं हिस्सतुद दुआ की तरफ। माल में बरकत के लिए बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना पेश किया जाता है, और उसके अल्फाज ये हैं,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीना वल मुमिनाति व अलल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, सल्ली अला मुहम्मद, तू अपनी रहमतें दायदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका इसमें ग्रामी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी ज़ात अक़दस पर नाज़िल फरमा। अब्दी का, जो तेरे मकबूल और महबूब बंदे हैं, व रसूलिक, और तेरे रसूल हैं, व अलल मुमिनीन, और तू बरकत और रहमत नाजिल फरमा मुमिन मर्दों पर, बल मुमिनात, और मुमिन औरतों पर, व अलल मुस्लिमीन, और मुसलमान मर्दों पर, बल मुस्लिमात, और मुसलमान औरतों पर। इस दरूद पाक, ये दरूद पाक तिलावत करने से अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल माल में बरकत अता फरमा देते हैं। चलते हैं आज के जो रुकू है हमारा, उसकी तिलावत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फबलगन अजलहुन्न फला तअदुलून अन यंकिहन अज़वाजहुन्न इज़ा तरादौ बैनहुम बिलमाअरूफ ज़ालिका युअज़ु बिही मा काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिकुम अज़का लकुम व अत्हर वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। वल वालिदातु, अब इसके कवायद देख लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी आयत को तिलावत करेंगे। व इज़ा तल्लक़, ता को मोटा और पुर करके पढ़ा जाएगा। खुस्सा दागतन क़िज़ हुरूफ मुस्तालिया में से है, सिफ्त इस्तिअला ता में मौजूद है, इसको मोटा और मुफख्खम, अच्छा मोटा का लफ्ज़ जब आए वहाँ तजवीद में इस्तिला मुफख्खम की इस्तेमाल होती है, मुस्तालिया की इस्तेमाल होती है, लिहाजा इसको याद रखिए ताकि आप इस्तिला से वाक़फियत हासिल कर सकें। तल्लक़, लक़, क़ाफ को मोटा करके पढ़ा जाएगा, और यहाँ ये दिन में से है, कलकला वाजिब होगा जब ये साकिन हो। तो अन्निसा में नून मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा। फबलगना, जहाँ ये हरूफ मुस्तालिया में से गैन है। अजलहुन्ना में नून मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा। फला, अलिफ खालिया हरकत है, माक़बल मफ्तूह है, अलिफ मद्दा होगा। तादुलू, दो द्वाद को मोटा करके पढ़ा जाएगा, और लू में वाव को भी लंबा करेंगे, वाव साकिन माक़बल मज़मूम, वाव मद्दा है। हुन्ना में नून मुशद्दद, गुन्ना वाजिब है। अय्या कहना, यहाँ इदगाम बिल गुन्ना, और यहाँ दूसरी नून के बाद काफ हुरूफ इख्फा में से है, यहाँ नून को अपने मखरज में छुपा कर पढ़ेंगे। अय्या कहना, नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से या है, इदगाम बिल गुन्ना होगा, और नून साकिन के बाद काफ हुरूफ इख्फा में से है, यहाँ इख्फा होगा, यानी नून को अपने मखरज में छुपा कर अदा किया जाएगा। अज़वाजहुन्ना में जा जो है, जा ये हुरूफ सफीरिया में से है, इसको सीटी के साथ अदा करेंगे। और इज़ा में वाल जो है ये हुरूफ सफीरिया में से नहीं है, इसके लिए सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए।
तो जा और रा इसमें फर्क होना चाहिए। जा दोनों दांत जो सामने वाले दोनों दांत हैं इनको आपस में मिलाइए और फिर जुबान के प्रेशर से अदा कीजिए जा जा। और जो लाल है लाल, ये दोनों जो दांत हैं सामने वाले, और थोड़ा सा मुंह खुला रखिए और उनके बीच जुबान को लाइए। हवा का इखराज जो है वो जुबान के ऊपर वाले हिस्से से होना चाहिए, तो लाल अदा होगा। अज़वाजहुन्ना इज़ा इज़ा तरादऊ, दाऊ इसको दौ नहीं पढ़ना, दाऊ ये वाव साकिन है, माकबल मफ्तू है, वाव लीन होगा और यहाँ नून मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा। बैनहुम मीम साकिन के बाद बा है, बैनहुम बिलमारूफी, बिलमारूफी आइन को जो है हलक से अदा करें। बाई में या साकिन है, माकबल मफ्तू है, या लीन होगा। युअदु में वाव साकिन है, माकबल मज़मूम वाव बता, और बिही में हा के नीचे या अलमदिया अस्सगीरा है, नून साकिन के बाद काफ हरूफे इख्फा में से है। बाओ काओ काफो लाम वाव मुंसु मुस्का, ये है कि मैंने वो हरूफे जारा पढ़ दिए। यहाँ हुरूफ पढ़ने थे हरूफे इख्फा, ता ता जीम ताल जाल दा, सीन शीन स्वा त्वा 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 फा वा काफ। काफ बरीक जो है ये हुरूफे इख्फा में से है, यहाँ नून को अपने मखरज में छुपा कर पढ़ा जाएगा। यहाँ भी नून साकिन के बाद काफ हुरूफे इख्फा में से है। म्याकुम म्याकुम। और आगे देखिए इसमें जलालत का माकबल मकसूर है, तो यहाँ इसमें जलालत को बरीक मुरक्कक पढ़ा जाएगा, मुफख्खम नहीं पढ़ा जाएगा। याऊ याऊ में बाव लीन है, या बाव या ये साकिन हो और इससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर हो तो ये बाव और या लीन कहलाते हैं, इनको नरमी से अदा करते हैं। वल याऊ याऊ, और मुंह को थोड़ा सा आपके लिप्स जो हैं वो गोल होते हैं। वल याऊ मिल आखिर खा जो है इसको मुफख्खम पढ़ा जाएगा, और अल हमजा के ऊपर जो खड़ी जबर है इसको अलिफ अलबतिया सगीरा कहते हैं, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। और यहाँ लाल और जा इसके फर्क को देखिए, अभी इस पर बातचीत हो चुकी। अज़का बच्चियों के नाम भी रखे जाते हैं, पाकीज़गी तहारत, अज़का पुरानी लफ्ज है, बच्चियों का नाम रखा जाता है अज़का। ये अलिफ अल मकसूरा की मिसाल है कि या लिखने में आई लेकिन पढ़ने में नहीं आ रही। अतहर तो साकिन है खुतुबुज़्ज़द्दिन में से, तो यहाँ कलकला वाजिब होगा। इसमें जलालत का माकबल मफ्तू है, इसको मोटा पुर करके पढ़ा जाएगा। नून साकिन के बाद ता हुरूफ इख्फा में से है, यहाँ नून को अपने मखरज में छुपा कर पढ़ेंगे। चलते हैं एक ही आयत आज तिलावत कर सके, इसी आयत का तर्जमा और इसकी तफसीर की जानिब पढ़ते हैं। आप इसका लफ्जी तर्जमा यहाँ से मुलाहिजा कर सकते हैं, और आइए इस आयत का तर्जमा, लफ्जी माना और इसका ग्रामर की जानिब पढ़ते हैं। वाह, और इदा जब जिस वक्त, तल्लक तुम ता तुमा तुम जमा मुज़क्कर हाजिर मर्दों को खिताब किया जा रहा है, और जब तुम तलाक दे दो अन्निसा औरतों को, फबलगना बस वो पूरी कर दें, अजलहुन्ना अपनी मुद्दत, तो फला बस ना तादुलू तादुलू, ये देखें तादुलू ना था, तादुलू ना था, और यहाँ लाम अलिफ ला की वजह से वो नून गिर गया, और ये जो नून मुशद्दद है ये इसके साथ इजाफा कर दिया ताकीदन। हमने ये पहले पढ़ा हुआ है कि नून मुशद्दद जब आखिर पर आता है तो ये ताकीद का माना दे देता है। और फला तअदुलूना बस तुम हरगिज ना रोको, अयन कहना उनको निकाह करने से, अज़वाजहुन्ना अपने शौहरों से, इज़ा तरादऊ जब वो दोनों राजी हो जाएं, शौहर भी और वो खातून भी ये राजी हो जाएं, तो तुम निकाह करने से उनको ना रोको। बैनहुम अपने दरमियान, बिल मारूफ भलाई से,
दालिका ये यू आदो, ये वाज करता है, नसीहत की जाती है, बिही इसके साथ, मन जो शख्स काना हो, मिन से, तुम में से, जो तुम में से हो, युमिनु ईमान रखता हो, बिल्लाह अल्लाह की ज़ात अक़दस पर, वल यौमिल आखिर और यौम आखिरत यानी क़यामत पर ईमान रखता हो, ज़ालिकुम ये तुम्हारे लिए, अज़का बहुत पाकीज़ा बात है, सुथरी बात है, लकुम तुम्हारे लिए, व अतहर और पाकीज़ा है, वल्लाहु और अल्लाह ताला यअलमु जानता है, व अंतुम ला तअलमून और तुम नहीं जानते हो। लफ्ज़ी तर्जुमा आपने देखा, तल्लक तुम जमा मुज़क्कर हाज़िर फेल मुज़ारे है, सॉरी फेल माजी है, और अयन कहना ये अन फेल मुज़ारे पर दाखिल हुआ, और इसने ये चूँकि मुअन्नस का सीगा था इसलिए नून इराबी नून मुअन्नस का तानीस का नून जो है वो बदस्तूर बरकरार रहा। यू आजू बाजा, यू आजू, यू आदो फिल माजी मजहूल है, फिल मुजारे मजहूल है, फिल मुजारे मजहूल है, और मिन हरफ जार कुम जमीर मुत्तसिल इसके साथ मिली हुई है, युमिनु फिल मुजारे है, आमाना युमिनु से, और ज़ालिका इसम इशारा कुम ज़मीर इसके साथ मिली, अज़का फिल माजी है, लाम का मतलब होता है वास्ते या के लिए, कुम ज़मीर मुत्तसिल जमा मुज़क्कर हाज़िर, अतहर इसमें तफजील है अफ़अल के वजन पर, बहुत ज्यादा पाकीज़ा, बहुत ज्यादा ताहिर, वल्लाहु यअलमु फिल मुज़ारे है, व अंतुम और ला तअलमून, ला तअलमून फिल मुज़ारे मनफी है। और जब तुम औरतों को तलाक दो और अपनी इद्दत पूरी होने को आप पहुंचे, तो जब वो शरई दस्तूर के मुताबिक बाहिम रजामंद हो जाएं तो उन्हें अपने पुराने या नए शौहरों से निकाह करने से मत रोको। क्या हुक्म है? बड़ा वाज़े और सरी हुक्म यह है कि एक खातून ने एक शौहर से निकाह किया था, घर नहीं बसा, शौहर ने 3 तलाकें दे दी, औरत ने इद्दत पूरी होने के बाद कहीं और अब इद्दत पूरी कर दी है। अब 2 हुक्म है, यहाँ 2 लोगों को खिताब किया जा रहा है। क्या? यहाँ पहला केस ये है कि वो जो औरत के कुफ्र में है, उसके वालिदैन हैं, उसके बहन भाई हैं, वो उसे ये ताना ना दें कि तुम्हें पहले किसी के ज़ौजियत में बख्शा था, शादी करी थी, और फिर तूने घर नहीं बसाया और तुम्हें तलाक हो गई है, अब हम बार बार तुझे कहाँ तेरे निकाह करते फिरें और कहाँ तेरी शादी करते फिरें, हम कौन सा वेले बैठे, ये ताना नहीं दिया जाएगा। और वो जो औरत के कुफ्र में है, वो उसके जो यूँ कह लें कि जो जिनके जिम्मा में औरत के मामलात हैं देखने वाले, वो लोग उसको नेक्स्ट निकाह की इजाजत दे देंगे, रोकेंगे नहीं उसको। वो इद्दत पूरी कर चुकी है और नई जगह पर निकाह करना उस खातून का हक है। सो उसके वालिदैन, उसके बहन भाई या उसके जो और सरपरस्त अहबाब हैं, उनमें से किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो उसको रोकें। एक सूरत ये है। दूसरी सूरत ये है कि वो जो पहले शौहर ने तलाक दी थी, अब उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी उसके नई जगह पर निकाह होने में रुकावट डाले या उस खातून पर पाबंदी लगाए कि बस अब तुम किसी और के साथ नेक्स्ट निकाह नहीं कर सकती हो। और भाई तूने तलाक देकर अपना ताल्लुक उससे तोड़ लिया है, अब तुझे कोई हक नहीं है कि उस खातून को पर अपना हुक्म चलाए, और उस खातून पर कोई वाजिब नहीं है कि वो तेरा हुक्म माने। अब एक तस्वीर का तीसरा रुख भी है, वो ये कि उस खातून ने निकाह कर लिया दूसरी जगह पर, पहले से तलाक हुई थी, दूसरी जगह निकाह कर लिया, अब दूसरी जगह भी घर नहीं बसा और उसने 3 तलाकें दे दी। अब खातून फिर इद्दत पूरी करेगी। अब अगर उसके जो पहले वाला शौहर था जिसने पहले 3 तलाकें दी थी, उस शौहर के पास वो दोबारा लौटना चाहती है, तो अब उसके जो सरपरस्त अहबाब हैं
تو اس کو پہلے شوہر اگر وہ رضامند ہے تو اس کی طرف نکاح کرنے سے اس کو روکیں گے نہیں، اور وہ خاتون اس پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمام باہمی معاملات میں نے اس لیے آپ تمام احباب کے لیے واضح کر دیے، مخلوق کے لیے واضح کر دیے، تاکہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے میں ایک ایمان یہ بھی رہے کہ ان احکامات کو ہم نے من و ان تسلیم نہیں کرنا، بلکہ ان پر عمل کرنا ہے، کیونکہ قیامت کے روز اللہ کے حضور ہمیں ان تمام معاملات کا حساب و کتاب دینا ہے، اور جو شخص ایمان رکھتا ہے یوم قیامت پر، اور ان اعمال پر اور ان دستور پر، ان قوانین پر عمل کرنا یہ تمہارے لیے اس لیے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ خود پاک ہے، اور وہ جو احکام ارشاد فرماتا ہے ان میں بھی نہایت پاکیزگی ہے، اور ان احکام کی جو حکمت شاید تمہاری عقول اس تک نہیں رسائی حاصل کر سکتی، جس حکمت کو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن مجید کی صحیح تفہیم نصیب فرمائے۔ آپ تمام احباب جو 18 لوگ میرے سمیت تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔